Vita Consecrata, Saint John Paul II accounts, in every age there have been men and women who, obedient to the Father's call and to the prompting of the Spirit, have chosen the special way of following Christ and devote themselves to Him with an undivided heart, leaving everything behind in order to be with Him and to put themselves in the service of God and humanity. Among us, we have 5 priests of the Jhabua Diocese: Father Matthew Maria Susai, Father John Tahir, Father Malhing Anton Katara, Father Sylvester Meda, and Father Thomas Kennedy, witnessing 25 years of priestly ordination of their life 25 years ago. With year of initial formation and discernment, you left everything behind in order to follow Christ and to put yourselves at the service of God and to humanity. Jubilee is time for looking back and looking forward. The book of Leviticus depicts the spirit of Jubilee as an occasion of grateful remembrance of the past events, of rejoicing for the graces received, of recognition of God's faithfulness. Dear fathers, brothers, and sisters, the journey of 25 years is not simply a journey through a starting of the days and years. Rather, the journeys have been surrounded and intervened by the intimacy and relationship, mystery, and secret growth. Your journeys have been fulfilled and demanding, risky and exciting. They have been filled with losses, gains, repeated joys and sorrows. In all this, God, who called and consecrated you, was always with you, enabling you to live the spirit of your consecration and so sing out the glories of the Lord. Dear fathers and brothers and sisters, let us make this day a grateful one and make it a pleasant, especially in today as we celebrate the Eucharistic banquet. All those who have been a part of our dear Father's life and those who lived and worked with us and have touched especially the ones in our parishes, as our fathers gratefully move towards the table of thanksgiving. Let us pray for them and the mission ahead. Let us arise and join in celebration, singing the trumpet sound and the music play. मुझे बता दे प्यारे प्रभु क्या
समर्पण करती हूँ मैं प्रभु तेरे लिए। मेरा ये जीवन तुझ पे समर्पण करती हूँ मैं प्रभु तेरे लिए। उसे तोड़ लाओ तेरे लिए, उसे चून लाओ तेरे लिए, उसे तोड़ लाओ तेरे लिए, उसे चून लाओ तेरे लिए। रोटी आधा रस प्रभु को अर्पण ग्रहण कर ले, पावन बना दे। उसे तोड़ लाओ तेरे लिए, उसे चून लाओ तेरे लिए, उसे तोड़ लाओ तेरे लिए, उसे चून लाओ तेरे लिए। थाली में फल फूल लाए हैं हम प्रभु के चरणों में। थाली में फल फूल लाए हैं हम प्रभु के चरणों में। उसे तोड़ लाओ तेरे लिए, उसे चून लाओ तेरे लिए, उसे तोड़ लाओ तेरे लिए, उसे चून लाओ तेरे लिए। प्रभु के चरणों में कहाँ कैसे क्या उपहार दूं, मैं समझ ना पाऊं क्या फूल चढ़ाऊं मैं। प्रभु के चरणों में कहाँ से चून लाओ तेरे लिए, उसे तोड़ लाओ तेरे लिए, उसे चून लाओ तेरे लिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आदरणीय फादर पीटर कराड़ी, जेडीसी के अध्यक्ष फादर प्रताप, मेरे साथ जुबली मनाते हुए वेदी के सामने उपस्थित मेरे सीनियर फादरगण और फादरगण, सिस्टरगण एवं जो भी उपस्थित है, सबसे पहले आप सबों को जय यीशु। 25 साल ईश्वर ने हम पर कृपा दृष्टि की है और ये मौका दिया है ये कलीसिया में सेवा करने के लिए, और इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आज विशेष रूप से आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करें। अभी हम सब मिलकर अपने पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इसमें सब बलिदान योग्य रीति से चढ़ा सके। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से
खुदा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपनी भारी कसूर से घोर पाप किया है। मैंने कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ये भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। पेज नंबर 33. C2. हम प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता, तूने हमें हमारे पुण्य बल पर नहीं बल्कि अपने प्रेम के कारण क्रिस्त की शाश्वत पुरोहिता में सहभागी होने और कलीसिया की सेवा करने के लिए चुना है। ऐसे कृपा कर कि हम सुसमाचार का उत्साही और विनम्र प्रचारक बने रहें और भले सेवक की तरह तेरे संस्कारों को संपन्न करें। अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त आपके जीवन पर हो ताकि वे सुसमाचार सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के जीवन के सहभागी बन जाओ। हम तुम्हें यह सब लिख रहे हैं जिससे हम सबों का आनंद परिपूर्ण हो जाए। प्रभु की वाणी।
आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। सप्ताह के प्रथम दिन मरियम मगदलेना ने सिमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेतरुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पिछेलकर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि तह किया हुआ दूसरी तरफ अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे पुरोहित भाइयों बहनों और सभी छोटे मोटे बच्चे, आज निश्चित रूप से हमारे डायसिस के लिए और हम सबों के लिए खुशी का दिन है कि हम में से सभी जो 5 पुरोहित यहाँ वेदी पर है अपनी अपनी जुबली हमने मना चुकी है। और मेरी जुबली 2 साल पहले हो चुकी है और मेरे से और 2 सीनियर फादर्स लोग हैं, उन्होंने 4 साल पहले अपनी जुबली बनाई और हम 5 मिलकर आज एक साथ यह धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। आज माता कलीसिया संत यूहन्ना प्रेरित का भी पर्व मनाती है और योग की या संयोग की बात कहें, आज मेरा भी त्यौहार है। संत यूहन्ना प्रेरित के नाम से मैं अपना त्यौहार भी मनाता हूँ। शायद बहुतों को ये मालूम नहीं होगा। अच्छी बात है और कई बार ऐसा होता है कि इस 25 सालों के दौरान आज के दिन हमारी पैरिशों में हम क्रिसमस मिलन समारोह मनाते हैं और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि जब क्रिसमस मिलन समारोह मना रहे हैं उस दौरान मुझे बोलना पड़ता है कि आज मेरा भी त्यौहार है। तो थोड़ा सा दूसरों को अटपटा लगता है, फादर आप हमारे साथ इतने समय से लेकिन आपने बताया नहीं कि आपका त्यौहार है। बोला ठीक, हम बताने के लिए नहीं, हमारा काम करना का फ़र्ज है, वह पूरा करते हैं। 3 मई 85 झाबुआ में 3 पुरोहित एक साथ पुरोहित बने और उसी दिन वोकेशन कैंप लगा और 3 दिनों का उस वोकेशन कैंप में मैंने अटेंड किया और 3 मई एक अच्छी तारीख है और उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। मेरा 9 साल की जो पढ़ाई हो गई उसके बाद बिशप स्वामी के पास मैं गया और कहा मेरे अपन डेट फिक्स करते हैं। मैंने स्वामी जी से कहा 3 मई अच्छा रहेगा। स्वामी जी का जवाब था, मुझसे पूछे बगैर आपने कैसे यह डेट फिक्स की है। मैं थोड़ा सा सकपकाया और कहा आपको जो उचित लगे वो डेट बता दो। उन्होंने डायरी देखी और कहा नहीं 3 मई सही है और मेरी खुशी और दुगनी हो गई कि 3 मई को मैंने सेमिनरी के लिए अपना पहला कदम उठाया। 3 मई को मेरा अभिषेक हो रहा है और वास्तव में एक खुशी का समय मुझे लगा। और जब 3 मई 95 को मेरा ऑर्डिनेशन हो रहा था, सब जगह तैयारियां हो रही थी, लोग सब अपने अपने काम धाम में लगे थे।
मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा इधर आओ। तो घर में गया और कहा कि आपके शर्ट का बटन खोलो। मुझे अटपटा सा लग रहा था। उन्होंने बटन खुलवाया और मेरे सीने पर क्रूस का चिन्ह बनाया। सीने पर क्रूस का चिन्ह बनाया। बोले आज आपका मुख्य दिन है, खास दिन है, सबकी निगाह आप पर रहेगी, ईश्वर किसी बुरी नज़र से आपको बचाए। तो माँ का ये संदेश मेरे लिए आज भी एक रूप से प्रोत्साहन देता है कि माँ अपने बच्चों को सदा सुरक्षित रहे उसकी कामना करती है। ऑर्डिनेशन के बाद पहला अपॉइंटमेंट मेरा मोहनकोट में हुआ। फादर लॉरेंस मेरे बॉस थे, पहले बॉस। उसके पहले मैंने मेरी डाइकनेट मिनिस्ट्री भी वहीं की और पहला डाइकनेट मिनिस्ट्री के दौरान काफ़ी अच्छा समय बीता। लेकिन जैसे ही ऑर्डिनेशन के बाद अपना कार्यकाल शुरू किया, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आई जरूर, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार था, आगे बढ़ता रहा और थोड़े उतार चढ़ाव आए। 1 साल के बाद मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से उन्नई किया गया। 3 साल वहाँ में था और 3 सालों के दौरान फादर कैनेडी भी मेरे बॉस रहे और उसके पहले फादर पैट्रिक वहाँ थे। और फादर पैट्रिक के दौरान गांव में हम कैटेकिज्म के लिए जा रहे थे। शाम के समय मास्टर अंतोन के साथ हम रोज़ जा रहे थे। थोड़ा सा हमारे लोक धर्मियों को शादी सुधार का कुछ प्रार्थना सिखा रहे थे। उस दिन हमारे मास्टर को बहुत ज़ोर से बुखार आया और कहा फादर मैं आज नहीं आ पाऊँगा। तो बोले आप जाइए और देखो आज अमावस्या की रात है, अमावस्या की रात है और आप जाओ देखते क्या है। जब मैं अपनी प्रार्थना सिखा कर वापस गांव से लौट रहा था, बीच घाट पर कुछ लोगों ने मुझे अटैक किया और वह अटैक के दौरान वास्तव में वो किसी दूसरे का इंतज़ार कर रहे थे और मैं उस बीच फंस गया। अटैक के दौरान मेरे सिर में चोट लगी और करीब 6-7 टाँके लगे। एक छोटा बच्चा हॉस्टल का मेरे पीछे मोटरसाइकिल में बैठा हुआ था और मैं असहाय वहाँ रोड पर था। तभी किस्मत से एक गाड़ी, मेडिकल वालों की एक गाड़ी आई और उन्होंने गाड़ी रोका, मुझे गाड़ी में बैठाया और जिसका भी इंतज़ार कर रहे थे वे लोग भी आ गए। उन्होंने मेरा मोटरसाइकिल लेकर वहाँ पास के घर में रखा और मुझे वापस पैरिश में लाए। और जैसे ही वहाँ पहुँचा मेरा बड़ा फादर पैट्रिक था, नहीं था, ड्राइवर भी इधर उधर निकल गया। अब थोड़ा सा विकट परिस्थिति। उसी दौरान एक मास्टर ने कहा फादर मैं ले चलता हूँ गाड़ी। गाड़ी निकाली लेकिन थोड़ा 1 से 2 था तो गाड़ी झूमने लगी। मुझे लगा कि एक मुसीबत से तो बचा हूँ, क्या मालूम दूसरा क्या हो। उसी दौरान ड्राइवर भी भागता हुआ कहीं से आ गया, लेकर मुझे जीवन ज्योति अस्पताल भर्ती किया गया। तो मेरा पुरोहित बनने के बाद का ये पहला अनुभव था जहाँ मैंने करीब 8 दिन भर्ती जीवन ज्योति हॉस्पिटल में था। उस दौरान मैं सोच रहा था, थोड़ा सा मनन चिंतन कर रहा था, ईश्वर ने जो किया है अच्छा ही किया है। ईश्वर ने जो कुछ किया अच्छा ही किया। उसका कारण ये, यदि जिन लोगों को वे लूटने की कोशिश कर रहे थे वे अपने परिवार वाले थे और हो सकता है जिस प्रकार की सेवा मेरे लिए की गई उनके लिए कोई नहीं कर पाता और उनका हालत मुझसे और बेहतर हो सकती थी। लेकिन अच्छा हुआ कि मुझे इस प्रकार का सामना करना पड़ा और मैं अस्पताल में जाकर ठीक भी हुआ। 8 दिन के बाद एक अभिषेक था, उसकी तैयारी में लग गया, दूसरी सब चीज़ें भूल चुका था मैं। फादर मार्शल का ऑर्डिनेशन था, वो संपन्न किए। तो 3 साल में उन्नई में असिस्टेंट पैरिश बिशप के रूप में कार्य किया। उसके बाद मैं ज्योतिबन हॉस्टल का डायरेक्टर बनकर मुझे वहाँ भेजा गया और वहाँ जाने के बाद पहला अनुभव यह था, 2 कुक और मैं, कोई बोर्डिंग मास्टर नहीं, कोई ब्रदर नहीं, कोई नहीं, हम 3 जन।
उस 3 में से एक तो घर चले जाता था, दूसरा वहीं रहता था। साल भर वैसा ही बिताया और जैसे ही छुट्टियां होती बच्चे लोग घर चले जाते और शाम के समय में अकेला, बिल्कुल सुनसान बड़ी बिल्डिंग में अकेला। सोचता हूँ भाई क्या बात है ये, दिन में तो बहुत सारे लोग मिलते, शाम के समय अकेला मायूस होकर अपने कमरे में रहकर इस प्रकार के। लेकिन ईश्वर पर विश्वास था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैं अपने विश्वास से डगमगाऊं। और 3 साल की बराबर सेवा करने के बाद मुझे दूसरा अपॉइंटमेंट जामली में मिला। जामली में जाकर देखा तो सिर्फ सिस्टर लोग पास में, 1-2 परिवार है जो वर्कर्स है। शाम के समय फिर अकेले, कोई आगे देखने वाला, पूछने वाला कुछ नहीं, एक एकाकी पर जीवन जैसे लगने लगा। फिर भी वहाँ जाकर कुछ रचनात्मक कार्य करने का जो संकल्प मैंने लिया, सबसे पहले तो हमारे बच्चे हॉस्टल के सरकारी स्कूल में जा रहे थे, उनके लिए एक स्कूल की कामना की और हमने एक स्कूल बनाया। 5वीं तक के स्कूल में बच्चे आसपास के कुछ आते थे, बाकी के हॉस्टल में थे। और उसी दौरान जो बच्चे हॉस्टल में थे, बाहर से आते थे, उन सबों के लिए नवोदय विद्यालय की परीक्षा में प्रवेश करने के लिए हमने हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया। 5 साल हो रहा था, बिशप साहब ने आकर कहा, फादर जी आपका ट्रांसफ़र यहाँ से हम करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपकी जो मर्जी, लेकिन मेरे एक सुझाव है। मैंने स्कूल शुरू किया है और पहला रिज़ल्ट अभी आने वाला है बोर्ड का, मुझे ये आखिरी साल उन बच्चों का रिज़ल्ट देखने दिया जाए, उसके बाद आप जहाँ चाहें भेज दीजिएगा। स्वामी जी ने भी उस पर विचार किया, ठीक है बोले 1 साल रुक जाइए। उस साल हमारे बच्चों ने एग्ज़ाम लिखी, बोर्ड एग्ज़ाम, और सभी शानदार प्रतिशत से पास हुई और नवोदय की परीक्षा भी लिखी। और पूरे ज़िले में 5 से 7 बच्चे हमारी ही उस स्कूल से निकले और 7 सालों के अंदर करीब आज 250 से 300 बच्चे नवोदय की परीक्षा लिखकर बाहर गए और कुछ अच्छी पोस्ट पर हैं। कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर्स है, और एक प्रकार से बच्चों को एक नई दिशा मिली। 7 साल के मेरे जो काम है वो करने के बाद मुझे फिर अपॉइंटमेंट मिला पंचुकी के लिए, और पंचुकी में 5 साल में था। वहाँ पर भी बहुत सारे काम की, एक अच्छा संतुष्ट भरा जीवन रहा मेरा वहाँ। और उसी दौरान मुझे अटैक आया और मैं बड़ौदा में रेफ़र किया गया, एंजियोप्लास्टिक हुई और करीब 1 सप्ताह भर 8-10 दिन तक मैं वहाँ रुका। और जब मुझे डिस्चार्ज किया गया तो मैं उस दिन सोचने लगा, मेरे पास क्या है, कुछ नहीं। अब मुझे यहाँ से डिस्चार्ज किया गया, मेरे पास मेरा अपना खुद का कपड़ा भी नहीं है, क्या किया जाए। उसी दौरान फ़ोन कर मेरे कपड़े बुला लिए गए। लेकिन उस दिन सोचने लगा कि भाई अपना जीवन क्या है, हमने ईश्वर के अपना कार्य समर्पित किया और उसके लिए जी रहे हैं। अब जब ऐसी परिस्थिति आती है, अपने साथ में कोई नहीं है। ज़रूर कुछ लोग आए, मेरे भाई लोग आए, मेरे बहन वगैरह आए, हमारे बहुत सारे फादर लोगों ने मुझे विजिट किया और कुछ प्रोत्साहन दिया, ज़रूर अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा हमारा जीवन क्या है, उसके प्रति थोड़ा सोचना वास्तव में एक ज़रूरी है। 5 साल की सेवा करने के बाद मुझे राजगढ़ भेजा गया। 7 महीना वहाँ 7 साल वहाँ रहा और जाते ही पहले दिन दूसरे दिन मेरे मन में विचार आया, यहाँ चर्च अभी तक नहीं बनाया गया है, चर्च की नितांत ज़रूरत है। और हमारे सभी पैरिशनर्स लोगों से कहा हमको प्रार्थना करनी चाहिए और ये काम हमको ज़रूर होगा, अपनी प्रार्थना रोज़ दिन अपन करें। अभी बीते वर्ष हमने एक सुंदर सा चर्च बनाया, लोगों के कंट्रीब्यूशन द्वारा और हमारे द्वारा लिखे प्रोजेक्ट के माध्यम से उसे कंप्लीट कर अभी नया अपॉइंटमेंट गोपालपुरा में मिला। ये मेरा ये ऑर्डिनेशन के बाद ये 27वां वर्ष चल रहा है
और इस 27 वर्ष में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन अपना विश्वास मजबूत अडिग रहा और ईश्वर सदा मेरे साथ हैं और उसका मैं अनुभव करता हूँ। और आज शायद आप लोगों के लिए या बहुतों के लिए मेरे जीवन की कुछ कुछ घटनाएं कुछ संदेश देती है, तो आपको धन्यवाद। मैं मेरा इतना अनुभव शेयर कर कर मैं दूसरों को बुलाता हूँ। धन्यवाद। फादर ताहिर के बाद अब मेरी बारी। मेरा नाम फादर मालिंग अंतोन कटारा और मेरा होम पैरिश मोहनकोट, मरिया माता मंदिर मोहनकोट। जैसे फादर ताहिर ने कहा, हम दोनों कक्षा 6वीं से दोनों साथ में हैं, अभी तक साथ में हैं, अभी रहते अलग अलग हैं। 3 मई जैसे फादर ने कहा, हम प्रेषितालय महू में भर्ती हुए थे। उस समय डायसिस का पहला माइनर सेमिनरी उसी साल हमारे बैच के माध्यम से शुरू हुआ था। हम शुरू में 9 जने थे। फादर मैथ्यू वैसे हम साथ में ही थे, पर 10+2 के कारण फादर मैथ्यू 1 साल पीछे रह गए और हम दोनों आगे। 9 साल के अंदर ही हम फादर ताहिर और हम दोनों का ऑर्डिनेशन हो गया। ऑर्डिनेशन के बाद मेरा पहला अपॉइंटमेंट धानी में हुआ, सेंट जोसेफ पैरिश धानी में। 2 साल रहने के बाद मैं झाबुआ में एज ए असिस्टेंट फादर पीटी थॉमस के साथ रहा और वहाँ से फिर मैं जामली, लगभग 3 साल मेरा जामली में रहा। जामली के बाद जैसे ही डायसिस अलग हुई, विश्व स्वामी ने मुझे कहा कि आपको आगे इंदौर सोशल स्टडीज़ के लिए जाना है, तो फिर मैं इंदौर पढ़ाई के लिए चला गया। मेरा MSW वहाँ हुआ। वो करने के बाद मैंने MPhil किया और पढ़ने के बाद फिर डायसिस में सोशल वर्क इंचार्ज के रूप में लगभग 15 साल मेरा पूरा सोशल वर्क फील्ड में ही बीता। लेकिन मेरा शुरू से ही एक रुझान था। आई वॉज मोस्टली और रादर आई वॉज इंटरेस्टेड इन ट्रेडिशनल और रिवाइवल ऑफ द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और सो कॉल्ड द agriculture practices. So it was so, rather it was an opportunity for me. My thought and then the life ahead. It is also said that opportunity knocks at the door only once. So I thought this is the best chance where I could practice what I was thinking of. तो उस समय ज़रूर मौका मिला और ज़िले में उसके पहले फादर कैनेडी ने बहुत सारे सोशल वर्क से संबंधित बहुत सारे कार्य, अच्छे कार्य वाटरशेड से संबंधित किए। लेकिन आई वॉज मिसिंग दिस वेरी पर्टिकुलर आइडिया। तो किसानों से बात करने के बाद दे मेड मी टू रियलाइज दैट इफ दिस प्रैक्टिस इज पुट इनटू, देन a kind of revival for them and a kind of recognition which I was looking for, I could utilize that. तो किसानों के साथ एक अच्छा समय बीता। 15 साल बहुत अच्छा बीता, पता नहीं चला कैसे। उसके पहले मैं जाता हूँ ऑर्डिनेशन जब मेरा हुआ, उसमें फादर लॉरेंस वहाँ पल्ली पुरोहित थे और फादर लॉरेंस ने बहुत सहयोग और बहुत ही आत्मीयता से, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ऑर्डिनेशन किस तरह से रहेगा, तो फादर ने बोला कि नहीं ये डोंट वरी। तो उतना ही मेरे लिए आश्वासन काफ़ी था। फादर ने जी जान पूरी मेहनत करके पूरी टीम बना के मेरा ऑर्डिनेशन संपन्न कराया। और आप नहीं जानते हैं कि फादर एडवर्ड यहाँ है। फादर एडवर्ड बहुत अच्छे गीतकार हैं, वो बहुत अच्छे गीत गाते थे एक समय। तो उस समय क्वायर मास्टर फादर एडवर्ड बने थे मेरे। और आज भी फादर की आवाज़ बुलंद है, आज भी वो गीत में कम नहीं पड़ते। और उसके बाद सारी दूसरी व्यवस्था फादर वर्गीस ने संभाली थी। फादर वर्गीस खास करके भोजन और दूसरी व्यवस्थाएं, तो ये मेरा सौभाग्य था कि 3 सीनियर पुरोहितों के द्वारा ये काम संपन्न हुआ। जामली में से उसके बाद सोशल वर्क में और फिर भंडारिया विश्व स्वामी
से मैंने निवेदन किया कि मैं सोशल वर्क में 15 साल रहा, तो मैं पास्टरल फील्ड में फिर से अपने आप को रिन्यू करना चाहता हूँ। वो मुझे थानला मुझे पहले से अपॉइंटमेंट उन्होंने दे दिया था, पर मैंने उसको बोला मैं थानला नहीं जाऊँगा, मैं एक छोटी पैरिश में जाके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में थोड़ा सा एक खरा उतरूँ, क्योंकि वहाँ जाके मैंने बोला मैंने काम करने में कोई डर नहीं है, मैं वहाँ सीधे चला जाऊँगा, सारा काम कर दूँगा, आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। पर आई लाइक टू गेट माई सेल्फ रिन्यूड इन द स्पिरिचुअल सोशियो पास्टल सैक्रमेंटल प्रैक्टिसेस। तो फिर मैं 1 साल रहा, उसने बोला कि नहीं फिर जाना पड़ेगा, नहीं, मैंने बोला 1 साल और मुझे चाहिए करके मैं 2 साल फिर मेरा अपॉइंटमेंट थानला में। वर्तमान में मैं थानला में एज ए पल्ली पुरोहित हूँ। कुछ सो कॉल लोग बोले बैड प्रैक्टिसेस हैं, बट रादर फॉर मी दे आर द गुड प्रैक्टिसेस। तो जो पहली प्रैक्टिस मैंने शुरू से ही पुरोहिता अभिषेक के समय से ही जारी रखी, वो मैंने डिसाइड किया था कि आई विल नेवर टेक रेस्ट इन द आफ्टरनून, because I had a very bad, not rather bad experience, but very learning experience. Father Matthew MM, I think those who are senior, they are well aware of Father Matthew. He is he's very particular about timings. तो 1 बजे वो सोने के लिए गया, और पहले नियम था कि if you are in the hostel anywhere, you have to visit the parish priest, say Jesu to him, and then go back for holidays. तो जैसे ही मैं बस से उतरा, मेरा इनोसेंट में जाके फादर को दरवाज़ा ठोका और मैं खाली जेसु बोला, बोले ये समय है जेसु बोलने का। मैंने तो मेरी सारी छुट्टी वहीं ख़त्म हो गई। तो उस समय से शायद इट वाज इन माय बैक ऑफ माय माइंड, देन एज आफ्टर द ऑर्डिनेशन आई थॉट दिस इज द बेस्ट टाइम टू डिसाइड नॉट टू टेक रेस्ट। सो मैं कभी आफ्टरनून में से कोई सोने के लिए मेरा कोई शुरू से ये बना ही नहीं। इवन द सेमिनरी लाइफ ऑल्सो माई फ्रेंड्स आर अवेयर, दोज आर सीनियर टू मी, फादर सिल्वेस्टर, फादर कैनेडी, फादर ताहिर ऑफ कोर्स। सो आई नेवर टुक रेस्ट इन द आफ्टरनून एंड टिल टुडे दैट इज इन मी। दूसरा what I had decided is never say yes to any holidays. So the word holiday is not in my dictionary. So I don't go for either some what you call home holidays or something. But relatives they come and visit me. But the only day which I visit my home is my mother's death anniversary. That is 13th of February. Father Lawrence was there. तो उस समय में जाता हूँ, नहीं तो बाकी ऐसा कोई हॉलीडे मैंने अभी तक नहीं लिया। बट दैट डजंट मीन दैट आई एम पुटिंग फॉरवर्ड समथिंग विच इज गुड फॉर यू, बट नो, इट्स माई चॉइस। बाकी तो सब कुछ अभी तक मैं जिंदा हूँ, खुशीपूर्वक जी रहा हूँ। Only another thing just I like to share with you is, as I said, in the traditional practices, what I mean to, or what I'm giving an emphasis on is of the health conscious. Things are available in the market, yes. You have an amount of choices there, but it is good if you eat what you cultivate. You eat what you cultivate. From different aspects, if you evaluate or you meditate on, this will give you a very, very good notion, very good thinking. So I continue consume the food which I myself cultivate rather. Some things, yes, necessary things we buy, like oil. Of course, we have to buy salt. Of course, we have to buy. But other things are, yes, they are available at your places. So thank you. Thank you one and all for making me what I am today, standing in front of you. There had been a lot of another struggles, of course, as Father said, but struggles are taken care by the Lord. So thank you one and all. Thank you so much. स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करता हूँ और इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया और अधोलोक में उतरा। वह तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान आइए प्यारे भाई बहनों, हम अपने निवेदन प्रभु की वेदी पर चढ़ाए। आज हमारे सभी पांचों पुरोहित की खुशी और आनंद में सहभागी होते हुए हम संपूर्ण कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। जिस तरह से संत यूहन्ना ने हमें सुसमाचार को लिपिबद्ध करके हमें धर्म शिक्षा प्रदान की है, हम प्रार्थना करें हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और कैटेकिस्ट के लिए हम प्रार्थना करें जिन्हें यह उत्तरदायित्व प्राप्त है कि वे धर्म शिक्षा के द्वारा लोक धर्मियों को अग्रसर करते रहे। हम सभी हमारे धार्मिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि हम निरंतर हमारे लोक धर्मियों की सेवा में उनके धर्म शिक्षा देने और सुसमाचार को प्रदान करने के लिए हम सदैव तत्पर रहे। ऐसी कृपा हमें प्रदान करें, इसके लिए हम निवेदन करें। हम आज हमारे सभी जुबिलरियंस के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर का धन्यवाद करें जिन्होंने 25 वर्षों तक हमारे धर्म प्रांत में रहकर कई क्षेत्रों में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक हो या अन्य क्षेत्र में लोगों को सहयोग प्रदान किया है, मार्गदर्शन दिया है, प्रेरित किया है और उनके जीवन को बनाया है। इसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करें। जिस तरह से अब्राहम को भेजा गया था और अब्राहम ने कई कठिनाइयों के साथ ईश्वर की इच्छा पूरी की, हमारे इन पुरोहित भाइयों ने भी अब तक ईश्वर की इच्छा को पूरी करते आए हैं। आज हम धन्यवाद देते हुए इनके लिए प्रार्थना करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ईश्वर निरंतर इनके साथ रहे, इनकी देख रेख करे, इन्हें संभाले, दुखों में इनके साथ रहे और यह निरंतर अनुभव करते रहे कि प्रभु सदैव उनके साथ रहेगा, क्योंकि प्रभु ने जो कार्य इनके जीवन में पूरा किया है वह कार्य प्रभु स्वयं समाप्ति तक पहुंचा देगा। इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें कि प्रभु निरंतर इनके साथ रहे, माँ की मध्यस्थता के द्वारा ये निरंतर ईश्वरीय कृपाओं को प्राप्त करते रहें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमको 25, 27, 28 वर्षों तक संभाल कर रखा और एक पुरोहित बनने का एक सौभाग्य दिया, एक पुरोहित बुलाहट दी है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं हमारे समर्पित जीवन के लिए और हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे द्वारा अलग अलग स्थानों में जो भी अनुष्ठान किए गए, संस्कारों का आदान प्रदान किया गया और उनके द्वारा आपकी कृपा जो प्राप्त हुई, उन सभी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक कार्य के लिए। हर कार्य में आपकी अनगिनत वरदान हमें प्राप्त हुए हैं। उन सभी वरदानों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में भी हमें अच्छा स्वास्थ्य दे एवं दीर्घायु दे, जिससे कि हम लगन, ईमानदारी एवं निष्ठा से आपकी इस विनयार्ड में हम कार्यरत रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी गुरुजनों के लिए जिन्होंने हमें दिलो जान से पढ़ाया, ज्ञान दिया। सभी पुरोहित हमारे शुरुआती जीवन से, सभी धर्म बहनों को जिन्होंने हमें पढ़ाया,
अलग अलग सेमिनरियों में जहाँ फादरों ने हमें धार्मिक ज्ञान बांटा, व्यवहारिक ज्ञान दिया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु हमारे इस धर्म प्रांत के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यहाँ उपस्थित हर एक धर्म बहन के लिए, धर्म भाई के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु हमारे सभी पुरोहित भाइयों के लिए जो पूरी लगन से इस धर्म प्रांत की व्यवस्था में लोगों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं। प्रार्थना करता हूँ प्रभु सभी पुरोहित भाइयों के लिए, सभी धर्म बहनों के लिए, सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए। हम सभी पुरोहित आपके लिए समर्पित हैं प्रभु। आपकी कृपा दृष्टि सभी को प्राप्त हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा कर, ताकि हम आपके प्रेम को अनुभव करते हुए, आपके निकट रहते हुए हमारा जीवन बिता सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। ए सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी श्रद्धा की ये दान ग्रहण कर और अपने क्रिस्त पर दृष्टि डाल, जो स्वयं पुरोहित और बलि है। तूने हमें उनकी प्रभुताई में सहभागी होने की कृपा प्रदान की है। ऐसा वर दे कि हम आध्यात्मिक बलि के रूप में भी सदा तुझे प्रसन्न करते रहे। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आदि शब्द के दे धारण के रहस्य द्वारा हमारे मन की आंखें पर तेरी महिमा की एक नई ज्योति चमकने लगी, ताकि हम उनमें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से उन्हीं के द्वारा अलौकिक वस्तुओं में के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम आनंद काल तक तेरी महिमा गान गाते हैं। हम सब मिलकर जीवन ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवन ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र
पवित्र है अमृत, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृतकों के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, मृत्यु और घोषणा तेरे पुनरुत्थान करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुखभोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं, तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की बैंड पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए, और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत योहन और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस हमारे सभी धर्मादर्शकों और याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा उसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए प्रलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस्य के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन कहा दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पापों से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारा मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। नहीं आप मेरे हाथ शब्द कह ले और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे नाम की महिमा के लिए मैंने अपने 25 के वर्षकांड पर विश्वास की यह संस्कार समर्पित किया है। मैं इस बलि का प्रतिरूप बनूं जिसे मैंने अपने संस्कार में चढ़ाया है। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। धन्यवाद परमेश्वर
Congratulations to you. Congratulations to you. हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह सप्रेम भेंट आपके आगामी पुराहिताई जीवन के लिए आपको
गायनगढ़ मां जलनारे पूरे दियो गायनगढ़ जलनारे पूरे दियो गरीबराजू थाया रे पूरे दियो गरीबराजू थाया रे पूरे दियो भगवान धन्यो रे पूरे दियो भगवान धन्यो रे पूरे दियो खुशी थाया रे पूरे दियो आपको खुशी थाया रे पूरे दियो पापन माफी आले रे पूरे दियो पापन माफी आले रे पूरे दियो हर गराज लायो रे पूरे दियो हर गराज लायो रे पूरे दियो लायो रे पूरे दियो हर गराज धीणा धीणा वाजा वागे धीणा धीणा वाजा वागे का वाजा वागे का वाजा वागे ओ धीणा 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 वाजा वागे का वाजा वागे का वाजा वागे विश्व हाउसा विश्व हाउसा वाजा वागे वाजा वागे दो साल के अंतर्गत हमने सब कुछ बहुत सारा कुछ नहीं कर पाए थे, इसलिए वैसे तो इनका 2 साल ऊपर हो गए फादर कैनेडी और क्या बोलते हैं फादर सिल्वेस्टर का, और दूसरों का 1.5 साल हो गया है, किसी के 2 साल हो गए, ऐसे 3 साल हो गए। फिर भी मेरा कहने का मतलब एक साथ मिल कर के हमने कभी ईश्वर को इनके साथ मिलकर प्रार्थना करना, 100 ज़रूर प्रार्थना अपन कहाँ भी है कहीं वहाँ से कर सकते हैं, पर एक अपने पास ऐसा समय मिला, इसलिए इसको हमारे जेडीसीपी वालों ने इसको अरेंज किया और उसके लिए बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं आप सबों को बधाई देता हूँ कि आप आए और इसमें भाग ले रहे हैं, और इसी से हमारे अपने आप में हम एक दूसरे के सहभागी और 107 जो दे रहे हैं एक दूसरे का, वो इस तरह एक चिन्ह है जो हम एक साथ आते, एक साथ मिलकर प्रार्थना करना और एक साथ मिल करके हर एक कार्य गतिविधियों में भाग लेना, यही दर्शाता हमारी कलीसिया एक यात्री कलीसिया एक साथ मिल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ में नए साल में भी मैं यही शुभकामना भी से देता हूँ कि हम एक साथ मिल करके अपने गतिविधियों का अच्छी तरह भलीभांति संचालन करते करें और आगे बढ़ें। साथ ही साथ जो साल हमारे लिए संत पापा ने दिया है, जो सामान्य धर्म सभा के लिए जो कार्यक्रम हम हमारे सामने दिए हैं, उनमें हम भाग लें। हर स्तर के लोगों के लिए हैं, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, और कॉन्सेक्रेटेड है जो समर्पित जीवन जी रहे हैं, उनके लिए भी अपने अपने स्तर पर इसको लें और इस गतिविधि में भाग लें और आपसे जो हो सके उसका कंट्रीब्यूशन करें। मतलब हमें सहभागिता करना है, देना है, बताना है, उसमें लिखने का भी है, सवाल जवाब है, उसका जवाब भी देना है। तो कहाँ तक आप लोगों के पल्लियों में वहाँ उस स्तर पे है, पल्ली स्तर में मतलब जो भी कॉन्वेंट आ रहे हैं उनका भी है भाग, तो उसको भी ध्यान रखें और उसे समय पर समाप्त करके हमें अपने डिंडरी वाले धर्मप्राण में पहुंचाएंगे। इसलिए दोहराता हूँ, ये महत्वपूर्ण है। पहले तो ये धर्म सभाएं हुई है काफ़ी, पर वो तो केवल ऊपरी लेवल पर बिशप प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी तो
काफ़ी यहाँ से जो बात जाएगी उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा उस धर्म सभा में, उसको लेकर के। पहले एक बार परिवार वर्ष में परिवार के लिए कुछ सवाल जवाब आए थे और उनको भी कंडक्ट करके हमने दिया, पर उतना व्यवस्थित नहीं हो पाया था जो इस साल इस समय में हो रहा है, ऐसा नहीं हो पाया था वास्तव में। कई बार मैं भी पहले पुरोहित था उधर, तो कई बार तो थोड़ा थोड़ा किसी को महिलाओं को दे करके लिख के ले आओ। वास्तव में बैठ करके इसके सबसे उत्तम साधन हमारा है लघु क्रिस्तीय समुदाय, जहाँ छोटा छोटा समुदाय 8-10 लोग मिल जाते हैं, वहाँ पर बहुत साकार होगा। पर पहले हमने ये भी आपको सजेशन दिया कि हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो संघ है, बालक यीशु संघ है, युवा संघ है, महिला संघ है, माता मरियम संघ है, सेंट जोसेफ संघ है और इस तरह के कली परिषद वाले हैं, ये सब अपने अपने जरूर कहलाते हैं पारिवारिक जीवन जीने वाले, परिवार से संबंध रखते हैं, पर इस तरह अलग अलग अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए उनको बहुत अच्छा मौका मिलता है। इसलिए ये सजेशन हमने दिया था। ये तो पल्ली पुरोहित जाने किस तरह अपने स्तर पर अपने क्षेत्र में लागू करे इसको। ऐसे ही धर्म बहने बेटी है, उनके समाज में से भी कुछ निर्देश दिए होंगे, पर धर्म प्रांत के अंतर्गत उनके पास भी ऐसा ही सवाल जवाब करके देना उचित होगा, तो उनके तक भी पहुंचाना होगा ये सभी। तो इसी के साथ में मैं फिर से आप सबों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। अभी और भी फादर पीटर खराड़ी, the diocesan administrator, dear jubilarians, fathers, 25 साल, 26 साल, 28 साल के जुबिलेरियंस, आदरणीय फादर्स, सिस्टर्स, जैसे ये प्रोग्राम चल रहा था मेरे मन में विचार आया था, 28 साल बीत जाने के बाद भी जुबली के उस मधुर बातों को याद करना एक सुखद अनुभव है। 28 सालों को यदि मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, ईश्वर की अपार कृपा आशीष मेरे जीवन में या हमारे जीवन में मुझे देखने को मिलता है। और आज के इस समय तक 28 वर्षों तक पुरोहित के रूप में सेवा कार्य करने का अवसर ईश्वर ने प्रदान की है। मैं सोचता हूं कि सफलतम तरीके से पुरोहित जीवन जीने का अवसर ईश्वर ने मुझे प्रदान की है। ईश्वर को जरूर धन्यवाद सर्वप्रथम, और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे इंदौर धर्म प्रांत के स्वर्गीय बिशप स्वामी जी, बिशप अनाथिल, इंदौर धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों, धर्म भाई बहनों, क्योंकि उस वक्त हम लोग इंदौर डायसिस में थे, इंदौर डायसिस के लिए ज्वाइन हुआ था। उसके बाद झाबुआ डायसिस के हमारे स्वर्गीय बिशप स्वामी जी बेसिल भुरिया जी, इंदौर झाबुआ डायसिस के प्रथम धर्माध्यक्ष बिशप चाको, उसके बाद बिशप देव प्रसाद गनावा, और हमारे धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों भाइयों, और विशेष रूप से जो इस वक्त यहाँ इस समारोह में भाग लेने के लिए उपस्थित है, सभी धर्म बहनों, ब्रदर्स, सभी लोग धर्मियों, क्योंकि सबों का योगदान, मैं सोचता हूं कि यदि आज के इस दिन आपके सामने खड़ा हूं तो सबों के प्रार्थना एवं सहयोग के कारण ही है। तो मैं इस वक्त सबों को याद करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और आप सबों से निवेदन करता हूं कि निरंतर प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि ईश्वर की आशीष कृपा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 28 साल पहले, यानी कि अप्रैल 28, 1993
पुरोहित अभिषेक, उसके बाद से जो पुरोहित जीवन का सफर मैंने भगोर से प्रारंभ की थी, प्रथम अपॉइंटमेंट। उसके बाद वहां से 1 साल के बाद फिर दत्तीगांव 3 साल, फिर वहीं से गुन्नई बल्ली पुरोहित के रूप में 5 साल, डूंगरीपाड़ा में पैरिश प्रीस्ट के तौर पर 2 साल, बाजना में 5 साल और मंसूर में 11 साल, और अभी इसी वक्त बिशप्स हाउस मेघनगर में पदस्थ हूँ। ईश्वर की उपस्थिति हमेशा हर क्षण मेरे साथ रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। 1993 से लेकर आज के इस दिन तक 2021 के आखिरी वक्त तक प्रभु साथ है, और मैं आशा करता हूं कि प्रभु की आशीष और कृपा और आप लोगों के प्रार्थना और सहयोग निरंतर आगे भी मिलते रहेंगे। फिर से आप सबों को और विशेष रूप से फादर पीटर खराड़ी, फादर प्रताप एंड जेडीसीपी के सभी पदाधिकारियों और सभी पुरोहितों को फिर से और आप सबों को जहाँ उपस्थित है धन्यवाद देता हूँ, और ईश्वर की आशीष कृपा की याचना निरंतर करते रहता हूँ। धन्यवाद। एक बात मेरे मन में ये विचार आया और मेरा जीवन में मैं इस बात पर विशेष ध्यान देता हूँ। जीवन में आने वाले हर प्रकार के कठिनाइयां, परेशानियां, दुख तकलीफ वह जीवन में अपने कार्यों पर, अपने जीवन पर हावी होने ना दे। जितने भी परेशानियां, कठिनाइयां आ भी जाए, वो हमारे जीवन पर हावी होने नहीं देना है, परंतु ईश्वर की योजना, इच्छा को समझकर स्वीकार करते हुए खुशी के साथ मुस्कुराते हुए जीवन आगे बढ़ाए। वही मैं सोचता हूँ मेरे जीवन में मैं यह कोशिश करता हूँ कि इसी प्रकार आगे बढ़े। परेशानी, दुख तकलीफ, कठिनाई यह सब एक अभिन्न अंग है, परंतु ईश्वर की आशीष साथ है तो हम सब कुछ अच्छी तरह कर पाएंगे, आनंद के साथ, खुशी के साथ। यही मेरे जीवन में मैं अनुभव करता हूँ, यही करने के लिए कोशिश भी करता हूँ। जेडीपीसी प्रेसिडेंट फादर प्रताप, समस्त जुबिलेरियन वरिष्ठ बोल रहा मैं, बुजुर्ग नहीं बोल रहा हूँ, वरिष्ठ पुरोहित, समस्त सिस्टर्स, मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ही मैं मिसा के लिए जा रहा था, फादर ने मुझे कहा कि आपको सरमन देना है। मैंने कहा कि मैंने फादर एडवर्ड की जुबली में सरमन दिया था 40 मिनट, फादर कश्मीर की जुबली में भी 40 मिनट, और शिष्य युलाली ने 50 वर्ष की जुबली मनाई तो मैंने 1 घंटे का सरमन दिया, और ये 5 लोग हैं तो मुझे समय तो चाहिए, ये 25 मिनट का काम नहीं चलेगा। तो ज़रूर मैं सोचता हूँ कि ये 25 वर्ष की हम ये वर्ष ज़रूर हम एक क्रिसमस सीजन में है, ये हमको जोड़ लिया थोक में, फिर तो एक अनुभव है। ज़रूर एक जीवन परिचय यदि देना है तो ज़रूर आप लोग फादर जूलियन ने लोड किए हैं दो जो यूट्यूब में मैसेज है, उसमें आधा घंटे का मेरा जो जुबली के कार्यक्रम है उसको देख सकते हैं। समय का अभाव है, नहीं तो मैं वर्णन करना चाहूँगा तो मुझे 40 मिनट चाहिए तो समय का अभाव है। तो ज़रूर यदि एक शॉर्ट में यदि हम परिचय, तो मैं 1 वर्ष राजगढ़ में रहा, 3 वर्ष झाबुआ में रहा पैरिश में, और 5 साल तक सेमिनरी डायरेक्टर रहा, 5 साल तक जीवन ज्योति डायरेक्टर रहा, और 5 साल में पैरिश प्रीस्ट राणापुर रहा। तो मैं सोच रहा था कि ये जो जुबली मना रहे, क्यों मना रहे। मैंने कहा कि ये अभी तो हम 3 साल हो गए, क्यों मना रहे ये जुबली। तो वो कहने लगे कि ये तो आपके समय में आपने मनाया नहीं, आप प्रेसिडेंट थे और आपने मनाया नहीं, और इसलिए हम अभी ये मनाने का एक अवसर मिला है। तो ज़रूर मैं ये सोचता हूँ कि ये जेडीपीसी ने जो कार्यभार संभाला और हमें यह अवसर दिया एक सुंदर लिटर्जी के द्वारा, सुंदर गाने के द्वारा और रंगारंग इन कार्यक्रमों के द्वारा जो
जो CRI के माध्यम से एवं थानलापल्ली के माध्यम से झाबुआ के द्वारा सिस्टर वंदना के नेतृत्व में जो भी आज संपन्न हुआ, हम क्रिसमस सीजन पे है, ये हमें याद रखना है। और हम देखते हैं कि यह सब जो हम करते हैं, एक सिस्टर यूलाली के समय मैंने एक कहानी सुनाई थी, वो कहानी तो सुनाऊंगा मैं, पर छोटी है, शॉर्ट कर देता हूँ। तो वहां पर वो 50 साल की जुबली मना रही थी, तो 50 साल की जुबली में मैंने ये कहानी बताया उनको कि यहाँ पर वहां पर एक आदमी था, वो मूंगफली बेचने के लिए जाता है, हाट में जाता है मूंगफली बेचने के लिए, और मूंगफली वो टोकरी में भर के ले जाता है, और वह उस 25 किलोमीटर दूर जाता है। हम 25 किलोमीटर, हम 27 किलोमीटर आ गए, तो हम 27 किलोमीटर या 25 किलोमीटर दूर जाता है वो मूंगफली बेचने के लिए। तो मूंगफली खाते खाते जाता है, वो खाते खाते जाता है, और वो छील के वापिस टोकरी में तो टोकरी में भर के जाता है। कुछ कुछ पक्षी भी आकर उस टोकरी में से खाते हैं। और वह जब जाता है वहां पर हाट में 25 किलोमीटर दूर, तब वहां पर बेचने के लिए उतारता है, तो केवल छिलके मूंगफली सब खा जाते हैं। तो वास्तव में ये जीवन 25 साल में ऐसा ही है, मूंगफली खा ली, खुद खा ली, दूसरे भी खा लिए, कुछ नहीं रहा। तो ये 25 साल नहीं, अभी हंसो मत, अभी जीसस क्राइस्ट का जीवन भी यही था। जीसस क्राइस्ट हैज एम्प्टीड हिमसेल्फ, सब कुछ दे दिया क्रूस पर, सब कुछ दे दिया, दूसरों के लिए दे दिया। और वही एक जीवन है पुरोहिताई का, वही है जीवन एक जुबली वर्ष का। सब कुछ दूसरों के लिए दे दिया है, दूसरों के लिए वो लोग जी रहे हैं, और कुछ नहीं है। पर अभी हम कहेंगे हमारा अभी 25 साल हुआ है, और भी टाइम पास के लिए मूंगफली बाकी है। तो जरूर ये तो भाई सबको आज से जो लिटर्जी शुरू हुआ, वहां से लेकर जो प्रार्थनाएं जिन्होंने की, आप सभी ने भाग लिया और रंगारंग प्रस्तुति दिया, और भी और होने वाले हैं, उन सभी के लिए धन्यवाद। सुंदर एक अच्छा भोजन भी तैयार किया फादर दीनू के नेतृत्व में, और ये सब सजावट एवं मार्गदर्शन पुरोहित ने इन्होंने किया है, इन सभी को भी धन्यवाद देता हूँ। फोटोग्राफर उन्होंने भी कैद करके रखा है हमको, बाद में वह देखेंगे। बच्चे लोगों ने जो सुंदर प्रस्तुति दी है उनके लिए, और जो भी डांस और इन सभी के लिए धन्यवाद। और भी आगे हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, ये सेकेंडरी है बोल रहा हूँ मैं, हमारा उद्देश्य है क्रिसमस सेलिब्रेशन। तो प्लीज सेलिब्रेट जीसस क्राइस्ट, दैट वो जीवन प्रभु यीशु क्रिस्ट ने हमें जो दिया है वह ईश्वर का दिया हुआ दान है, और इसके लिए हम निरंतर ईश्वर को धन्यवाद दें। अनगिनत वरदान जो ईश्वर ने हमें दिए हैं इन 25 वर्षों में, और आने वाले समय में इन सभी के लिए आपके पुरोहितों के द्वारा जो आपसी यूनिटी, और सिस्टर लोग के द्वारा सहयोग, और इन सभी लोक धर्मियों के द्वारा जो सहयोग प्राप्त है, उन सभी के लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और विशेष रूप से धर्मप्रांत में अभी वर्तमान में एक सचिव के रूप में मैं अभी 3 साल से कार्यरत हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इन सभी के लिए हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, जिससे कि हम सशक्त होकर और भी प्रभु के इस डाकबारी में कार्य करते रहे। धन्यवाद। फादर सिल्वेस्टर मेरे सीनियर हैं, और जब भी सेमिनरी में की जरूरत पड़ती थी नाचने के लिए, अब उसमें भी जब छोटे थे तो बहुत सुंदर दिखते थे, तो हमेशा ये इनको लड़की बना दिया जाता था। और जैसे ही अब उसके बाद 2 साल बाद मैं गया, तो मेरे को बलि का बकरा बनाया इन्होंने। अब ये सीनियर हो गए, तो जब भी लड़कियों के लिए जरूरत पड़े नाच के लिए, तो ये मेरे को थमा देते थे वहां पे। तो एक इस तरह से ये भी हमारे लिए एक अच्छा अनुभव रहा है। एक जो अच्छी बात जो मुझे हमेशा और सभी पुरोहितों को याद आती है, the greatest gift one can ever receive is vocation. There is no gift compared to our priesthood. So this is very I have इस बात को मैंने गहरे दिल से जाना है, और सभी पुरोहितों ने
और धर्म बहनों ने भी इस बात को गहराई से समझा है। A priest is a priest forever in the order of Melchizedek. So whether you are sleeping, you are awake, you say mass, you are praying, or you are taking bath, or whichever way, you are a priest forever. So thank you so much. So आदरणीय dear Father Karadi, Jubilarians, dear fathers and sisters, I am very happy to be here today because among these 5 fathers, 3 fathers I had very close contact. When I was in Mohan Court, I had the privilege of attending, or rather the organizing the ordination of Father Katara. I organized it in a different way. I still remember that because from every village of Mohan Court, I organized a small team and come to Mohan Court and celebrate Father's ordination. And I also enjoyed, the people also enjoyed. And in Mohan Court, with me, Father John Tahir was with me, not assistant, my companion. Yeah, my companion. And in my last year in Mohan Court, Father Matthew Maria Susai was with me for 1 year. And with that, we both left Mohan Court. You also left? Hey, now you are there. That time. Yeah. So, dear friends, I am reminded of a Bible verse, Mark chapter 3, verse 15. The Lord says that He has called the disciples to be with Him, to experience Him, and to share that experience with the people and heal the people. And I feel that we have done that duty which was entrusted to all of us. And I praise and thank the Lord for not only for our vocation, but also the vocation of all these 5 fathers. Let us thank the Lord for the gift of vocation. Today, vocation is very highly said by all the fathers here. And I am sure all of us feel that our vocation is very precious. Though we may have ups and downs in our life. To tell you one example of mine, I don't like to save much money with me. You know why? Not that I don't need money, but always I feel if I have money, I will become very proud and I will forget God. If I have no money, even if, as I am sure all of them have accepted that life has ups and downs. All of us have got ups and downs. But in these downs, when we have no money, when we have no strength, we feel God is our strength. And therefore, that is a very good example for all of us. So thank Father for giving me this opportunity to express my experience. Thank you. Thank you, Father, for your message that God is our strength. Right from beginning, Father Vishal Mal, जिन्होंने प्रस्तावना के द्वारा हमें निशा पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए सहयोग प्रदान किया। सिस्टर वंदना और जागोपल्ली की बालिकाएं और थांदा की बालिकाएं और फादर सोनू, जिनको मैंने पूछा था, उनकी अगुवाई में उन्होंने बच्चों को तैयार किया। फादर एंड्रूस मेघनगर की बालिकाएं, जिनको मैंने आग्रह किया था, उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया। और फादर मनोज, जिन्होंने यूकरिस्ट में सुमधुर भजनों के द्वारा हमें प्रार्थना करने के लिए सहयोग प्रदान किया। सेविका सिस्टर्स, मदर तेरेसा सिस्टर्स, आपको भी धन्यवाद। और
मैं श्रद्धेय फादर पीटर खराड़ी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मैंने आग्रह किया कि हम ये दो कार्यक्रम कंबाइंड रखें, क्योंकि बार बार एक साथ आना मुश्किल पड़ता है और छुट्टी भी नहीं है तो सब एक साथ नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि क्रिसमस सेलिब्रेशन के साथ ही जुबली मनाए हम, क्योंकि 2 साल से हमारा यही अनुभव रहा। हम जुबली का डेट तय करते रहे और कोरोना आ गया, जुबली का डेट तय किया, कोरोना आ गया, तो 2 साल से हमारे साथ ऐसा ही हुआ। हम यह कार्यक्रम नहीं कर पाए थे और इसीलिए हमने सोचा अभी वातावरण सामान्य है तो हमने ये दोनों कार्यक्रम एक साथ रखे और फादर ने हमें अनुमति प्रदान की। श्रद्धेय फादर पीटर खराड़ी, आपका आभार और धन्यवाद। हम सभी जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, आप सभी का आभार और धन्यवाद। हम जोरदार ताली बजाकर एक दूसरे का